that I had asked you to make the format and come. Which two sums that is paid 267 per? Question number 8. Let's start first. Question number 8. Everybody. Jaya, Mamta and Smriti are the partners sharing profit and loss in the ratio 2/5, 5/10 and 1/10. The balance sheet of the firm as on 31/3 is as under: creditors, general reserve, capital account, current account and bad debt reserve. Whereas on the asset side we have goodwill, building, machinery, investment stock. Debtors, loan to Smriti, and then we have a current account of Smriti. अब स्मृति रिटायर हो रही है and at the time of retirement following are the adjustment. 4,000 is outstanding for the rent payable, so we cannot take anything. Interest on investment is बाकी, we cannot take. Investments को टिक करो, they are sold for 35,000. Goodwill is valued at 2 lakh. Now for that we'll be passing the entry for goodwill for the share of retiring partner. And Jaya and Mamta का जरा check करो. What's the new ratio given? What's the new ratio given? So but all attention on the board. First of all, working note number 1, calculation of gain ratio. Working note number 1, calculation of gain ratio. कौन कौन है बेटा अपने पार्टनर? जया, Mamta and Smriti. But what's my old ratio given? What's the old ratio? अरे सम में क्या दिया है भाई? 2/5, 5/10, 1/10. Now can I say यहाँ पर denominator same नहीं है? जरा चेक करो. It's 2/5, then it's 5/10, 1/10. ये दोनों तो same है, लेकिन ये 2/5 is not the same. So उसको same करने के लिए मैं क्या करूं? Can I say 2 से multiply? So 4/10, 5/10 and 1/10. So what will be my old ratio? 4:5:1. What's my old ratio? 4:5:2. Sure. Now out of that new ratio क्या बोला है? कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? Smriti is getting retired. So what's my new ratio? New 1:1, which is 1/2 and 1/2. Yes or no? And gain ratio अब कैसे मिलेगा? जरा ध्यान से. gain ratio जया का, what's the formula for gain ratio? New ratio minus old ratio. What's my new ratio? 1/2. Old ratio 4/10. So if I cross the multiply, 20, 10 minus 8, that is, so that's 2/20. Jaya. And देखो जमता का कितना आ रहा है? 1/2 minus 5/10. देखो चमत्कार होने वाला है. तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, देखो जरा. Yeah. 10 minus 10, that is 0/20. तो इसका sacrifice या तो gain कुछ भी नहीं है. देखो पहले भी 5/10 मिल रहे हैं, अभी भी 1/2. 5/10, it's the same. तो no gain, no sacrifice. तो gain खाली कर कौन रहा है? gain कौन कर रहा है? जया. ये तुम लोगों ने वर्किंग कर ली थी? पक्का? कितने लोगों ने निपटा दिया था? ये वर्किंग निपटा दिया है. बहुत बढ़िया. तो सीधा अब मैं सम स्टार्ट कर दूं. कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पर? कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पर? 5. बेटा कौन से 5? रिवैल्यूएशन, वेरी गुड. पार्टनर्स कैपिटल, बहुत बढ़िया. फिर हाँ, ये देखो नया अकाउंट अपने बना रहे हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट, revaluation account. Then we have cash and bank account. बेटा पार्टनर्स कैपिटल छोटा ही बनाना है, ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट नहीं है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
उसमें बेटा कौन कौन से पार्टनर हैं? जया, जमता, स्मृति, जया, ममता, स्मृति. This is credit, this is debit. Yes or no? Then we make partners current account, जिसमें यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन है. We make partners current account also. Particulars बेटा कौन कौन से हैं? जया, ममता, स्मृति. जया, ममता, स्मृति. This is credit, this is debit, and the last column is of the balance sheet, that is liabilities, amount, asset, amount. बेटा सम स्टार्ट कर दूं? सम स्टार्ट कर दें. सबसे पहले क्रेडिटर्स में डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर्स? नो. कितना है बेटा अमाउंट क्रेडिटर्स का? वी हैव क्रेडिटर्स ऑफ 90,000. देन जनरल रिजर्व का क्या करें? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैपिटल में डालूं कि करंट में डालूं? कैपिटल के करंट में जाएगा. एंड इन विच रेशियो? सो क्रेडिट साइड स्टार्टिंग की 2 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूं जनरल रिजर्व. बेटा अभी नवा रेशियो हमने देखा ओल्ड का 4, 5, 1. तो टेल मी जया का कितना आ रहा है? 28. कितना? 28. पची 35. एंड स्मृति का 7. बहुत बढ़िया. देन कैपिटल अकाउंट ऑफ जया, ममता, स्मृति. पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. कितना है बेटा? जया 2 लाख, पची ममता 1 लाख, स्मृति 90,000. ओके. देन करंट अकाउंट ऑफ जया, ममता. करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट जरा चेक करो. इट्स ऑन द लायबिलिटी साइड. इट्स ऑन द लायबिलिटी साइड. सो करंट अकाउंट में कहां जाएगा? करंट अकाउंट में इट विल गो टू द क्रेडिट साइड. By balance brought forward how much? Jaya 26, Mamta 40, 14. Bad debt reserve, do we have any adjustment? No. So liability में दिखा सकते हैं, debtor में से माइनस करके बता सकते हैं. Both the ways are okay. चले तो bad debt reserve will show on the liability side. पुरानी गुडविल का क्या करूं? पुरानी गुडविल का क्या करूं? सो कहना से करंट में जाएगा, कैपिटल में जाएगा. अच्छा, कैपिटल और करंट हम जब दोनों चीजें बना रहे हैं तो ये कैपिटल में कौन कौन सी आइटम जाती थी? जरा रिवाइज करवाओ. ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल एंड क्लोजिंग. वेरी गुड, यू रिमेंबर ओनली 3 थिंग्स. ओपनिंग, एडिशनल एंड बाकी बद्दू करंट में. जैसे तो गुडविल भी करंट में जाएगा. 1 लाइन छोड़ के गुडविल बेटा तीनों में 5, 4, 1 12, 15 अने 12,000, 15,000 अने 3,000. जोरदार. बिल्डिंग 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 बेटा बिल्डिंग. इट विल गो ऑन द asset side 2,82,000. Building will go on the asset side 2,82,000. Machinery, do we have any adjustment? How much is the amount? 1,45,000. बहुत बढ़िया. फिर investment. Yes, we have adjustment. Investments, we have adjustment 33,000. Yes. Then stock. No adjustment. 20. पची debtors, any adjustment? No. How much is the amount debtors? कितना? 5050. The next item जरा ध्यान से. Loan to Smriti. What do you mean by this word? Loan to Smriti? Loan to Smriti. कहना से बिजनेस ने स्मृति को लोन दिया है.
क्या ना इसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्मृति इतने पैसे ऑलरेडी बिजनेस में तो लेके चली गई है. नाउ सी लोन इज ऑन द असेट साइड. सो करंट अकाउंट में मैं ये कहां लिखूंगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन है ये डेबिट साइड. वेरी गुड. टू लोन टू स्मृति बिकॉज शी इज रिटायरिंग ना, तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे ताकि हमें पता चले कि अब जब स्मृति रिटायर हो रही है तो उसे हमें कितना पैसा देना है. व्हाट्स अवर फुल एंड फाइनल वाला सेटलमेंट. डू यू गेट इट? सो हाउ मच इज द लोन? 30,000. बेटा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस. सो टू opening balance, how much is the amount? 10,000. current account का opening balance है 10,000. but sure, but how many of you have done this and come prepared? इतना सब करके तुम आए हो. बड़ा इतनी कम जनता बस, बाकी अब मेरे साथ साथ शुरू किए. जोश है बेटा, तुम में जोश है. पहला वाला जरा पढ़े एडजस्टमेंट. चलो फर्स्ट 4,000 इज रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग. बेटा इफ द रेंट इज पेबल वेयर विल आई शो रेंट इज पेबल? सो द फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द लायबिलिटी साइड. रेंट पेबल कितनी अमाउंट है? 4,000. And beta if the rent is payable, second effect, revaluation के debit side rent payable because the liability is increasing, तो 4,000. Then interest on investment, investment receivable है, मतलब वो interest मिलना, that interest is receivable, interest मिलना. बेटा where do I show asset के liability? मिलना बाकी. So outstanding interest on investment. How much is the amount? 2,500. बेटा my asset has increased. Revaluation के credit side by outstanding interest 2,500. by outstanding interest 2,500. Then investments are sold for how much? 35. Pay attention. Investments are sold for how much? The actual value is how much right now? 33. Actual value कितना है? कितने से बढ़ा? कितने से बढ़ा? और फिर मैंने उसको बेचा. सो पहले हमने 2,000 से वैल्यू बढ़ाई, सो वो हम पहले लिख ले रहे हैं 35. बेटा ये वैल्यू बढ़ रही है. रिवैल्यूएशन ना क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 2,000. क्या हो गया? ने अब मैंने ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया. रेज योर हैंड, आई वांट जर्नल एंट्री. इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दिए हैं. प्रांशु, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. एवरीबॉडी प्लीज राइट द एंट्री. एब्सोल्युटली राइट. इन्वेस्टमेंट अगर बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश. सो जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3. Journal entry for adjustment number 3. Beta what's the entry? Cash account debit to investments. Cash account debit to investments. बेटा कैश एंड बैंक में कहाँ जाएगा ये? कैश एंड बैंक में डेबिट साइड, डेबिट साइड. देखो बेटा कैश एंड बैंक का पहला आइटम आया, पहला आइटम 35,000 और हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है बेटा, सेल कर दी है. माइनस, तो कहना है सोल्ड
35,000 आउटर कॉलम कितना जाएगा? इट्स 35,000 आउटर कॉलम कितना जाएगा? नील। बेटा नेक्स्ट, goodwill of the firm is valued at how much? So give the heading working note number 4. 3. Working note number 3. Calculation of amount of goodwill for Smriti's share. Calculation of amount of goodwill for Smriti's share. And it's a journal entry. And it's so बेटा मेरा टोटल गुडविल है कितना? व्हाट्स माई टोटल गुडविल? 2 लाख इज माई टोटल गुडविल। उसमें स्मृति का शेयर कितना है? स्मृति का शेयर 2 लाख का 1/10। कहना से स्मृति का शेयर है 20,000। तो वो अब जब रिटायर होके जा रही है तो उसको 20,000 रुपया गुडविल का मिलना चाहिए। कौन देगा ये गुडविल का पैसा? कहना से द कंटिन्यूइंग पार्टनर जया एंड ममता। लेकिन ममता ने तो देखो कोई गेन करा, तो ये पूरे के पूरे 20,000 कौन देगा? पूरे के पूरे 20,000 विल बी गिवन बाय एंट्री बताओ। जयास करंट, नॉट कैपिटल, जयास करंट। जयास करंट अकाउंट डेबिट टू स्मृति's करंट अकाउंट। बेटा अमाउंट बता दो। 20,000 या अमाउंट इज 20,000। बेटा रेज योर हैंड। I want the ledger posting. It's a fact. Ledger posting. अंशिका किधर जाएगा ये? जया करंट टू स्मृति's करंट. What will be the posting? पार्टनर्स करंट में डेबिट साइड टू स्मृति। वेरी गुड। जया के कॉलम में अमाउंट। वेरी गुड। 20,000। फिर क्रेडिट साइड। वेरी गुड। बाय जयास करंट और अमाउंट ममता स्मृति। वेरी गुड। अमाउंट किधर जाएगी? स्मृति। श्योर? यहां से लास्ट वाला एडजस्टमेंट देख लिया ना, रेशियो 1:1। उसका हमने क्या किया? गेन रेशियो के लिए ढूंढ लिया है। राइट। अब देखो ये सम में बेटा नया पॉइंट क्या है? नाउ यू ड्रॉप योर पेन, जस्ट टेक अप योर कैलकुलेटर्स। हेल्प करो मेरी ये सब चीजें क्लोज करने में, फिर मैं तुम्हें टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। अपने पास अब तकलीफ क्या होने वाली है? हमको ढूंढना है स्मृति का अपने को कितना फुल एंड फाइनल उसको पेमेंट करने का है। अब देखो स्मृति ये कैपिटल भी लेके आई थी 90,000 और उसका करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस है। यस और नो? तो अपने पास 2 रास्ते हैं अमाउंट ढूंढने के। एक, कैपिटल अकाउंट का टोटल साइड में रखो, करंट अकाउंट का टोटल साइड में रखो, फिर दोनों का टोटल मर्ज करके देखो कि कितना बैलेंस हमको देना है स्मृति को, क्योंकि वो रिटायर हो रही है ना, तो उसको तो पैसे लेके जाने हैं बिजनेस में से। तो she has got some capital account balance, she has got some current account balance. We find it out separately, then we add them together or add less them and we can get a final amount. दूसरा ऑप्शन जो बुक में उन्होंने यूज किया है और जो मेरे को भी अच्छा लगता है कि हम पहले उसका करंट अकाउंट का बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंस आ रहा है उसको शिफ्ट करेंगे किधर? कैपिटल अकाउंट में। मतलब विल मर्ज द करंट अकाउंट बैलेंस इन विच अकाउंट? અને પછી જ્યારે વી ક્લોઝ કેપિટલ અકાઉન્ટ ત્યારે તરત મને સીધી અમાઉન્ટ મળી જશે કે મારે સ્મૃતિને what's the full and final amount is payable, rather than finding two balance then adding subtracting, ये सब मगजमारी ना करके what are we doing? Can I say we'll close the partner's current account, whatever the balance come we shift it to partner's capital account,
when we close partners capital account, we'll get the full and final amount in capital account itself. Sure? Now, to close current account, what is the first thing we need to do? Revaluation account बंद करना है. वो चलो, वो साथ में करो मेरे, वो साथ में करो. 4500 4500 तो क्या मैं से 500 रुपया आ रहा है, देखो तो. ना 500 रुपया है मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो किसके बीच में जाएगा? जया, ममता, स्मृति, इन द रेशियो 4:5:1. 200 250 અને 50. 200 250 અને 50. बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कुठे? पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड. बाय 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 बाय. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 200 250 અને 50. 200 250 અને 50. बेटा रिटायर कौन हो रहा है? तो पहले उसी का हम टोटल करेंगे. चलो, स्मृति का हम पहले टोटल करेंगे. जरा हाथ ऊपर ध्यान से. कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, डेबिट का कि क्रेडिट का? डेबिट का टोटल ज्यादा है, 43. बेटा द सेम टोटल आई विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, 43. અને એમાંથી આ ત્રણે ત્રણ આઈટમ માઈનસ કરો. 15950. अब बेटा ये जो बैलेंस आया 15950, हमने अभी डिस्कस करा. ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसको हम शिफ्ट कहां करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस हम शिफ्ट कहां करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में. तो ये जो डिफरेंस आया उसमें लिखो बाय स्मृतिज कैपिटल, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो हम शिफ्ट करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट में. समझ रहे हो? समझ रहे हो? नाउ स्कॉलर बैच. करंट अकाउंट में श्रुतिज कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड. सो करंट अकाउंट में कहां जाएगा? करंट अकाउंट में कहां जाएगा? इट्स ऑन द क्रेडिट साइड. सो करंट का यहां पर कैपिटल में डेबिट साइड हम लिख देंगे स्मृतिज करंट अकाउंट 15950. 15950. बेटा आई एम वेटिंग. इतना पहले पता चला? इतना पहले पता चला सबको? सबको. अब स्मृति का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं. चलो बताओ कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? क्या से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 90,000. 74050. अब बेटा हाथ ऊपर. ये क्या आया? 74050. व्हाट इज दिस अमाउंट? क्या से फुल एंड फाइनल पेमेंट जो अब मेरे को स्मृति को देना है? मतलब वो बिजनेस में जितने भी पैसे लेके आए, करंट कैपिटल सबका कंक्लूजन 874050. बेटा डू वी हैव कैश? अपने पास उतना कैश है तो हम स्मृति को क्या बोलेंगे? कीप दिस अमाउंट एज. सो लिखा जाए टू स्मृति's loan 74050. To Smriti's loan 74050. बेटा ये स्मृति का लोन लिखेंगे कहाँ? स्मृति का लोन लायबिलिटी. वेरी गुड बेटा, लिखा जाए Smriti's loan on the liability side 74050. अरे अब बेटा जया ममता का करंट कैपिटल अकाउंट सब हम क्लोज करते हैं. चलो जया जया कितना है? 54. अरे ममता 49250.
54 200 અને 49 250 22200 कॉपी करने वाले बेटा खुश है? 34 250 जल्दी कैलकुलेटर निकालना मत ना, कसम है। 22200 34250 बेटा ये जो आया उसे हम कहते हैं क्लोजिंग वाला बैलेंस। अब क्या ना से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो ये जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए ये जो बैलेंस है वो है क्रेडिट बैलेंस। नाउ टेल मी, वेयर डू आई शो दिस क्रेडिट बैलेंस? वेयर डू आई शो? सो लिखा जाए लायबिलिटी में करंट अकाउंट जया 22200 जमता 34250 अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बंद करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख અને 1 लाख 2 लाख અને 1 लाख यही है बेटा द क्लोजिंग बैलेंस। अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर क्या रहे हैं हम? तुम जैसा हो गया हूं मैं। अल्लाह, कैन आई से दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस? अरे बेटा क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे हम? क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी। सो कैपिटल जया 2 lakhs, ममता 1 lakh, and the beta the total of the balance sheet। टैली नहीं होगा जब तक कैश नहीं करोगे। कैसे टैली होगा? कैश बैंक तो करा ही नहीं है तुमने। बेटा कैश बैलेंस 35 534,500 बेटा दैट्स माय टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 534,500। अब बेटा तुमने अगर ये डेटर में से बीडीआर माइनस करा होगा तो 10,000 कम आएंगे, ठीक है? 534,500 अरे बेटा आके ना